شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوست احباب، آج ہم بات کریں گے رئیس المنافقین کی اس جھوٹ کے تعلق سے جو اس نے ممبئی میں حالیہ دنوں میں لفظ 1 منٹ کی اسپیچ کے درمیان اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کا رئیس المنافقین ثابت ہو چکا ہے. اس کو میں دلیل کے ساتھ بھی پروف کروں گا، ثبوتوں کے ساتھ بھی پروف کروں گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے کہ کسی شخص کے لیے منافق ہونے کے لیے کافی ہے اذا حدث کذبا، جب کوئی شخص بولے تو جھوٹ بولے. اس کی منافقت کے لیے یہی مثال کافی ہے، یہی ثبوت کافی ہے. لہذا رئیس المنافقین نے اس بات کو باقاعدہ مہر لگا دیا ہے. ہندوستان کی لاکھوں پبلک عوام مسلمانان ہند اس بات کو تو جانتے ہی تھے کہ یہ رئیس المنافقین مسلمانوں کی بربادی کا سب سے بڑا ہندوستان میں ذریعہ ہے اور آئندہ بھی ذریعہ رہے گا. ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف اس نے جس مہم کا، جس غلط کاری کا اس نے بیڑا اٹھایا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے، لاکھوں کروڑوں مظلومین کی دعاؤں کی بدولت یہ رئیس المنافقین اور اس کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین انشاءاللہ تہس نہس ہو جائے گی. آج یہ چیز دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے کارکنان، ہمارے دوست احباب، ہمارے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے انویسٹر بھائی اس رئیس المنافقین کی غلط کاریوں کو، جھوٹ کو، ان کے مکر و فریب کو اور ان کے دجل و فریب کو پبلک کے سامنے لا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شخص آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کا سرگرہ رئیس المنافقین در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ممبئی میں ہاتھ جوڑ رہا ہے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، لوگوں کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے کہ برائے مہربانی ایک بار آپ ہمارے کارکنان کو چن کر کے دکھائیں. لیکن میں وعدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کا سرگنا بھی نیست و نابود ہوگا. اللہ تعالی اس کو نیست و نابود کرے گا اور اس کی پارٹی کا نام لینے والا انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کوئی لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. لہذا اس منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ جب بولے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، جب بولے تو جھوٹ بولے. کسی منافق کی علامت یہی ہوتی ہے. منافق نے کیا جھوٹ بولا ہے میں ایک ایک لفظ کا جواب دیتا ہوں، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں اور اس کی اسپیچ بھی سناتا ہوں کہ آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس رئیس المنافقین نے کس طرح سے جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ سازش کا جال بچھا کر کے اس کی سی ای او کو جیل کرا کے کس طرح سے 20 لاکھ مسلمان غریبوں کی روزی روٹی بند کرانے کا یہ ذریعہ بنا ہے. سنتے ہیں. یہ آج دعوے کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر دعوے کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مجلس پر بہت سے الزام لگائیں گے. سرگنا کہتا ہے کہ مجلس پر الزام لگائیں گے. الزام لگائیں گے نہیں، الزام لگا ہوا ہے تمہارے اوپر. آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے سرگنا رئیس المنافقین، تمہاری غلط کاریاں اتنی ہیں، تمہاری بدکاریاں اتنی ہیں. ہمارے ہزاروں دوستوں نے یہ عہد لیا ہے کہ جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی زندگی رکھے گا آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کی کارکردگیاں جب سے یہ قائم ہوئی ہے، آزادی سے لے کر کے اب تک کی اس کی غنڈہ گردی، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی، مسلمانوں کی پارٹی کو، مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے کس طرح سے بیڑا اٹھایا ہے اس آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین نے، اس کو ہم لوگ عیاں کریں گے. اس سے بوکھلا کر کے اس کا یہ بیان ہے، سنیے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس نے 2012 میں کسی نے ایک بلا سودی کاروبار کا آغاز کیا تھا. کہتے ہیں کہ بولے تو سوپ بولے، چھلنی کیا بولے جس میں 72 سوراخ ہوتے ہیں. ایک سودی کاروبار چلانے والا شخص
सूदी कारोबार, सूदी बैंक चलाने वाला शख्स एक इस्लामी तिजारत पर आवाज उठा रहा है और कह रहा है कि बिला सूदी, यानी कि ये सूद की लानत को मुसलमानों में परोसने के लिए इसने एक इस्लामी कंपनी को, सूद से पाक कंपनी को इसने तहस नहस करने के लिए क्या किया, आप खुद सुने। मैंने 2012 की गवर्नमेंट से कहा था ये बिला सूदी कारोबार के नाम पर गरीबों के पैसे लूटने वाली कंपनी है। झूठ, रईसुल मुनाफिकीन तू झूठ बोल रहा है। ये पंफलेट तेरे ईमेल आईडी पर, तेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। पूरे मुल्क के अवाम को ये मैं दिखा देना चाहता हूं। ये रईसुल मुनाफिकीन कह रहा है कि मैंने हुकूमत से, उस वक्त की हुकूमत से कहा था, उस वक्त की हुकूमत से नहीं कहा था इसने, इस रईसुल मुनाफिकीन ने, इसने एफआईआर किया था 2012 में, एफआईआर किया था। ये एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर की ये कॉपी है। आप लोग अपने व्हाट्सएप पर भी मुझसे मांग सकते हैं। इसने एफआईआर किया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, ये कह करके कि ये बिला सूदी कारोबार का दम भरती हैं। तुम झूठ बोल रहे हो रईसुल मुनाफिकीन, तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। तुमने एफआईआर किया था और एफआईआर में तुमको 2016 में हार का सामना करना पड़ा और उस हार के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने तुम्हारे ऊपर डिफामेशन का केस किया हुआ है 100 करोड़, जिससे तुम्हारी हवाएं उखड़ी हुई हैं, जिससे तुम तिलमिलाए हुए हो। झूठे इंसान, तुम झूठ का सहारा मत लो। सूदी कारोबार चलाने वाले गैर सूदी निजाम को तहस नहस करने के लिए सीना सपर है। ये तुम चीज बताते क्यों नहीं? ये चीज सबूतों के साथ हम बताते हैं, सबूतों के साथ अवाम के सामने है, सबूतों के साथ पब्लिक में हम लाते रहेंगे। तुम झूठ का सहारा लेकर के, मैं कहता हूं, मैंने लिखा है तहरीरों में कि ये रईसुल मुनाफिकीन आंखें बंद कर करके बोलता है। अगर ये 1 मिनट तक आंखें खोल करके बोले तो ये अपने झूठ पर, अपने दजल पर, अपने फरेब पर ये खुद शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। इतना बड़ा झूठा इंसान है। आगे सुन। कर्नाटका का इलेक्शन भी लड़े, अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैसा लेकर गायब। कर्नाटका का इलेक्शन लड़े तो तुम्हारे बाप के पैसे से लड़े। कर्नाटका का इलेक्शन लड़े तो तुम्हारी हवाएं उखड़ गई। रईसुल मुनाफिकीन, अगर दम है, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो लोगों के हाथ पैर बांध करके नहीं, हाथ खोल करके मैदान में आओ। फिर देखते हैं कितना जिगर तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दूध पिला करके कितना जिगर दिया हुआ है। तुम हाथ पैर बांध करके नहीं, हाथ खोल करके आओ। जिस कर्नाटका का तुम नाम ले रहे हो उसमें साफ साफ ये क्यों नहीं बताते कि वहां से तुम्हें बोरिया बिस्तर संभाल करके भागना पड़ा था। अब तुमने डॉक्टर नौहरा शेख को गिरफ्तार करवाया है। डॉक्टर नौहरा शेख को गिरफ्तार करके तेलंगाना का इलेक्शन, 2019 का लोकसभा इलेक्शन और अब महाराष्ट्र का इलेक्शन निकालने में तुम कामयाब हो गए। कब तक तुम इसी तरह कामयाब होते रहोगे रईसुल मुनाफिकीन? इंशाल्लाह एक न एक दिन ऐसा आएगा और आ चुका है कि इंशाल्लाह ताला 24 तारीख को अगर एक भी सीट तुम्हारी आ गई, रईसुल मुनाफिकीन तुम्हारी एक भी सीट आ गई तो जो कहोगे वो हारने को तैयार हूं। तुम तेलंगाना के इलेक्शन में 1000 वोटों से हारे हो, जीते हो। कैसे जीते हो? तुम अपनी एमआईएम की एक अकलौती सीट कैसे जीते हो हैदराबाद में, वो भी हमें पता है। इलेक्शन में कैसे तुम जीते हो ये भी हमें पता है। जांच का विषय है। जिस तरह से जिस दिन जांच बैठेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर अपनी मां का दूध पिया है बैरिस्टर, तो तुम किसी का हाथ बांध करके उससे मुकाबला मत करो। तुम्हें अगर जिगर है तुम्हारे अंदर तो मुकाबला करो। इलेक्शन का नाम लेते हो, किसी का हाथ पैर बांध करके मुकाबला करने की मर्दानगी नहीं। तुम बहुत बड़े हिजड़े हो। अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैसा लेकर गायब और गरीब परेशान। पैसा लेकर गायब तुम्हारे बाप दादा हुए हैं। पैसा लेकर के गायब तुम्हारे आका हुए हैं, जिनके खिलाफ तुम नहीं बोलते हो।
पता नहीं कौन कौन भाग गए, पता नहीं कौन कौन बैंकों को चूना लेकर के चले गए। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ बोल सको। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं बोली है। जेलों में जाकर के, मैं बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूं, जेलों में जाकर के ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोग जेलों में जाकर के डॉक्टर नौहरा को कहते रहे कि मैडम हम तुम्हें निकालने का बंदोबस्त करते हैं, तुम इंडिया छोड़कर भाग जाओ। लेकिन डॉक्टर नौहरा ने कहा कि मैं छोड़ करके इंडिया नहीं जाऊंगी, चाहे तुम बोटी बोटी करके मुझे यहीं के सरजमीन में दफन कर दो, मैं मरूंगी, जीऊंगी यहीं तो मरूंगी यहीं। इन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोगों ने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर नौहरा को बाहर भगा दिया जाए, लेकिन ऐसा डॉक्टर नौहरा ने नहीं किया। वो शेर दिल खातून है, मुत्तकी परहेजगार खातून है, जिएगी अपने दम पर और लड़ेगी अपने दम पर। आज भी अंदर बैठ करके लड़ रही है डिफेमेशन केस में। अगर तुम्हारी अंदर जिगर है तो तुम फाइट करके दिखाओ और तुम आंखें बंद करके मत बोलो। मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के सरगना रईसुल मुनाफिकीन, तुम्हारी चालें अब चलने वाली नहीं है। तुम्हारा हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत बड़ा करम है कि तुमने ये लफ्ज बोले। ये 1 मिनट यानी 46 सेकंड की जो आवाज तुमने अपने गंदे मुंह से निकाली है, इसके लिए कौम मुल्क तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा कि तुमने अपनी करतूतों को, एक बार तुम्हारे इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में बोला था कि हम ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे हैं, तो हजारों दोस्त हमारे ये कहने वाले कि तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो MIM पर। लेकिन वहां से वो लोग आए और कहा लोगों ने कि भाई तुमसे हम माफी मांगते हैं, तुम लोग जो कहते थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे MIM का हाथ है, तो हम मानते नहीं थे, लेकिन आज मान गए हैं। आज उसी तरह से तुमने एक दूसरा सबूत दे करके मुल्क के लोगों के सामने, मुल्क के मुसलमानों के सामने तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा मुल्क कि तुमने अपने ही दजल और फरेब को मंजर आम पर ला करके बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि तुम कहते हो कि इल्जाम लगाते रहेंगे, इल्जाम नहीं, हकीकत। इंशाअल्लाह ताला इस हकीकत की बिना पर, और यही हकीकत तुम आज बोल रहे हो, इसी हकीकत को डॉक्टर नौहरा आज से सालों पहले ये चीज बताती रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे 2008 से 2009 से 2011 से 2012 से 2010 से MIM पड़ी हुई है। और MIM नहीं चाहती है कि एक मुस्लिम माइशत को सुधारने वाली, गरीबों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाली, 20 लाख अफराद की रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाली टीम और कंपनी, सूद से पाक कंपनी चल सके, ये MIM वाले नहीं चाहते। सुनिए ये डॉक्टर नौहरा का सालों पहले का बयान। करती थी क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने बहुत सब्र किया कि 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है मेरे ऊपर एक झूठा कंप्लेंट दर्ज करवाए। मगर किसका हाथ क्या है, ये तो सीधी सी बात है कि MIM के लीडर का हाथ है और MIM का हाथ है जो पीछे से ये सब कुछ जो है चाल चल कर करवा रहे हैं, और ब्लैकमेलरों का हाथ है जिसके अंदर डिमांडिंग, ब्लैकमेलिंग सब कुछ भी है। और उसके बाद लिखा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पिछले साल जो है हीरा ग्रुप के प्रॉपर्टीज को चेक कर रही है वगैरह सब कुछ। हाँ बेशक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भी ऐसा ही गलत इंफॉर्मेशन दिया गया और बैंक से जो पैसे आए थे उसको पकड़ा के दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे दिन ही सबमिट कर दिए, फलाने चेक से ये पैसे हमने ड्रा किए थे, हमारा वाइट मनी है, सब कुछ भी करके बोल के। उसके बाद उन्होंने भी आकर सारे चीजें लेके गए और सारे चीजें चेक किए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है हमारी गलती, अल्लाह के फजल से। वहां तुम्हारी गलत कार्यों का सबूत, बहुत बड़ा सबूत, ये पंफलेट है जिसको हम लोगों ने, हमारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दोस्तों ने, हजारों लाखों दोस्तों ने लोगों के पास हार्ड कॉपी भी, जिसमें कि तमाम MIM का दजलो फरेब, धोखेधड़ी, धमकी, ईमेल के जरिया से, फोन के जरिया से, ब्लैकमेलिंग के, FIR के तमाम सबूत इसमें दिए गए हैं। ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, माशाल्लाह 1 साल से सर्कुलेट हो रहा है। और दोस्त अहबाब से मैं अपील करता हूं कि इस रईसुल मुनाफिकीन और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोगों का ये गंदी सियासत
गंदी चालबाजी, अय्यारी, मक्कारी लोगों के सामने लाएं और इस पार्टी को ख़त्म करने का, जो मुसलमानों की मईशत को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए जो पार्टी लॉन्च की गई है, जो पार्टी वजूद में इसीलिए आई है गुंडागर्दी के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, उसको लोगों के सामने आया करें, वाज़ेह करें। हम लोगों का ये फ़र्ज़ है। तमाम दोस्त अहबाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रईसुल मुनाफिकीन को महाराष्ट्र में नाकाम बनाकर मुसलमानों की कमज़ोरी बनने के ज़रिया को जड़ से ख़त्म करने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।